امیر علیہ سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جب کسی کے ہاں رشتہ لینے جائیں اور رشتہ پسند نہ آئے تو کیا انداز ہونا چاہیے واپسی پر کہ بندہ جھوٹ غیبت چغلی سے بھی بچے اور کس انداز میں ان کو جواب دے دیا جائے کہ کام بھی پورا ہو جائے اور گناہ سے بھی بچے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ رشتہ لینے جاتے ہیں تو یعنی کہ دیکھنے جاتے ہیں، پہلے انکوائری کر رہے ہیں، اس وقت تو کوئی اپنے کومنٹس دیتا نہیں ہے. عام طور پہ سمجھدار آدمی کومنٹس نہیں دے گا. اگر سامنے والے بھی پوچھتے نہیں ہوں گے کہ کیا ارادہ ہے، اگر پوچھ بھی لیں انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں. یوں گھر کے آدمی مشورہ تو کر رہا ہی ہوتا ہے نا، انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم دونوں کے حق میں بہتر فرمائے. یہ میٹھے میٹھے بن کر مسکرا کر بیچاروں نے چائے پلایا، شربت پلایا، اب ایک دم منہ چڑھا کے نکل جاؤ گے تو یہ ویسے بھی تو نہیں ٹھیک نا. اب پسند نہ آنا اور بعد میں اگر کہے بھی تو یہ مطلب نہ کہا جائے کہ ہم کو رشتہ پسند نہیں ہے. اگر مشاورت میں کچھ مشاورت میں ہی طے ہوتا ہے بڑے بوڑھوں سے، خاندان اور مشاورت ہم نے کی، ابھی ہمارا ذہن یہاں ہے نہیں. دعا فرمائے اگر ذہن بن گیا انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے. رشتہ خراب ہے، برا ہے، یہ کریں گے تو دل آزاریاں اور گناہوں کے دروازے کھل سکتے ہیں. تو ہر چیز میں حکمت عملی ہو اور احتیاط ہونی چاہیے. کہ وہ بولتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایک محاورہ یہ ایک محاورہ یہ گڑ سے مرتا ہو تو زہر نہ دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بعض اوقات اس کا حل یہ بھی نکالتے ہیں کہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ استخارے میں منع آیا ہے. جب دیکھ رہے ہیں اس کو تو استخارہ کیا نہیں ہے، اسے تو مشاورت کریں گے. پھر مطلب یہ کہ اگر ان میں کوئی خوبی ہے نا سامنے والے میں اگر ہے تو بیان کر دی جائے. سبحان اللہ آپ کی بیٹی تو عورت ہی بولے گی ذرا کہ ماشاء اللہ، مگر ہم نے استخارہ کروایا تو انشاءاللہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اللہ کریم ہمارا دونوں کا مطلب بھلا کرے. فریقین جو ان کا بھی ایسا رشتہ ہو جائے کہ دونوں سکھی رہیں. اس طرح کی یعنی کہ بولنا آنا آتا ہو نا تو آدمی ایسے بول سکتا ہے جس سے سامنے والے کا دل نہیں دکھے گا. ایک تو میں یہ استخارے والی بات عرض کر رہا تھا کہ عمومی طور پر استخارہ پھر کرواتے ہیں یہ آسان ہوتا ہے تو، لیکن اب مثال کے طور پہ سمجھ نہیں آ رہا وہاں پہ کروانا تو بسا اوقات ایسی اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ وہ غلط بیانی کے طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ استخارے میں اچھا نہیں آیا. اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ استخارہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر استخارے میں ہاں گیا اور اب ہمارا ذہن بن نہیں رہا اور ہم نے ہاں بول دیا تو یہ یعنی اب دل نہیں کر رواں کرنے کا. جو اطلاعات ہیں جو تفتیش کی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں ذہن نہیں بن رہا، چاہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو چاہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو. عمومی طور پر یہ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ لڑکے والے تو باقاعدہ رشتہ ڈالتے ہیں. یعنی جیسے دیکھنے کے لیے آئے لڑکے والے، ہمارے جو معاشرے کا ایک عام طور پہ جو بالخصوص ہمارے علاقوں کا ہے کہ لڑکے والے دیکھنے کے لیے گئے ہیں ان کے گھر سے افراد، اب ان کو سمجھ آتا ہے تو وہ رشتے کی بات کرتے ہیں، نہیں آتا تو وہ تو بسا اوقات پلٹ کر جواب بھی نہیں دیتے. ہاتھ بات کر لیتے نہیں وہ تو پلٹ کے جواب دیتے بھی نہیں ہیں بسا اوقات. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ رشتہ ڈالتے ہیں پھر لڑکی والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ ہاں بولے یا نہ بولے. ان کو پھر یہ پریشانی آتی ہے کہ بسا اوقات جو تفتیش کرتے ہیں معلومات لیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں آتی. تو اب ایک تو اس میں پھر وہ استخارہ کرواتے ہوئے گھبراتے ہیں اور بسا اوقات استخارہ کرواتے ہیں تو اس میں ہاں آ جاتا ہے کیونکہ استخارہ ضنی چیز ہے تو اب ان کو سمجھ نہیں پڑتی کہ اب کیا کریں تو بسا اوقات تو وہ غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں کہ استخارے میں منع آ گیا. ایک تو یہ ارشاد فرما دیں اس حوالے سے. دوسرا یہ ارشاد فرما دیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ساری زندگی کا معاملہ ہے اور بیٹی دینی ہے تو اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ سستی برت جاتے ہیں. ایک آدھی چیز دیکھ کر پھر پوچھا جاتا ہے تو ہم نے فلاں کے بھروسے پر ایسا کر لیا تھا اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اب یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. استخارہ اگر کروایا ہے تب بھی ضرورت نہ ہونا تو ڈکلیئر نہ کیا جائے، جبکہ کرنا نہیں ہے اور وہاں آ گیا ہے. اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے کہ استخارے میں نہ آیا ہے جبکہ آیا ہاں ہے، دل ہو نہیں رہا، تو پھر بتایا نہ جائے استخارے کا. جھوٹ بولیں گے ظاہر گناہ گار ہوں گے. اور واقعی انکوائری اصل مسئلہ ہے، انکوائری پوری کرتے ہیں.
बारहा इंक्वायरी पूरी होती है, जिससे इंक्वायरी की जाती है वो सही जवाब देते नहीं है, बोलते यार अपने कहाँ बिगाड़ेंगे। जिसको भी ये पूछेंगे ना, बहुत अच्छी जगह है, माशाअल्लाह, बहुत शरीफ बच्ची है, बहुत अच्छा घराना है, ये मुझे तजुर्बा है इसका। ये बोलते हैं और लड़के वाले को ये या होम करके आग में डाल देते हैं, या लड़की वाले को आग में डाल देते हैं, अवाम जो है। तो जिससे मशवरा किया जाए वो अमीन होता है। यानी इसमें इसकी सूरत है कि अगर मामला इसके मशवरे पर ही मौकूफ है, तब तो इस पर वाजिब हो जाएगा कि दुरुस्त मशवरा देना पड़ेगा इसको, वरना कोई तबाही मच रही है, फितना हो रहा है, फसाद हो रहा है, गुनाह के दरवाजे खुले हुए जरूरी है। और मशवरा 100% उसको सही देना पड़ेगा, उसकी बुराई इसको मालूम है तो इसको बताए। तो अब ये कि झूठ नहीं बोलेगा कि ये बहुत अच्छा है रिश्ता, खानदान दुरुस्त है वगैरह वगैरह। अब यहाँ मामला ये होगा कि हर एक डरेगा सही मशवरा देते हुए कि पता है कि लड़की सही नहीं है या लड़का सही नहीं है, पता होता है, लेकिन बताते हुए डरता है कि लड़के का पूरा खानदान मुझ पर चढ़ाई कर देगा, तुमने हमारा रिश्ता तोड़वा दिया, और लड़की वाले भी दुश्मन बन जाएंगे, ये इम्कान रहेगा कि तुमने हमारा रिश्ता होते होते तोड़वा दिया, तुम्हारे हाथ में क्या आया, ये इम्कानात रहेंगे। तो अब इसमें यह कि जहाँ है ना अल फितनतो अशद्दु मिनल कत्ल है ना कुरान करीम में, अब वो यहाँ फितने से जो भी मुराद है वो अलग इसकी तफसीर, यानी कि फितना बाज़ सूरतों में कत्ल से भी खतरनाक होता है। ये कुरानी समझो कि क्या कहेंगे, इस्तियारा कहेंगे इसको, मुहावरा। तो ये क्या फितना खतरनाक होता है, मारा मारी कत्ल गारत गरी भी हो सकती है अगर रिश्ता आपने कह दिया कि ये सही नहीं। तो ऐसे मौके पर ज़ाहिर है कि शरीयत हर सूरत में हमको वाजिब नहीं करेगी कि हम अपनी जान भी कुर्बान कर दें, लेकिन जहाँ मतलब ऐसे हालात ना हो तो जब भी मशवरा देना है तो दुरुस्त देना ये वाजिब है, झूठ ना बोले, इसमें कुछ छुपाए नहीं, चबाए नहीं, 100% जो भी सही दे दे बोल दे। लेकिन ये कोई मर्द का बच्चा होगा वही सही देगा, ये भी मुहावरा है, बच्चा मर्द का नहीं होता औरत का होता है, लेकिन वो ना शेर का बच्चा शेरी होता है। तो यूं मतलब ये कि इंक्वायरी में तो मसाइल हैं ये, क्योंकि मुझे पता है ना, तजर्बात हैं इसके, और ऐसे ऐसे पते लोगों को होते हैं खानदानों को कि जिसकी इंतजारी। अच्छा, इनमें तोड़वाने वाले भी आते हैं, इसका भी मुझे तजर्बा है। मेरे साथ भी, मेरे पास भी तोड़वाने वाले आए थे जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, और मुझे पहले से इत्तला कर दी गई थी कि बाज लोग आपके पास आएंगे। इनकी इंक्वायरी इतनी पावरफुल होती है खानदानों की, आपके पास बाज लोग आएंगे, यूं यूं बोलेंगे, आप समझ जाइएगा। तो यकीन माने, मैं वो जब मेरा रिश्ता हुआ उन दिनों तो हम गौ गली में रहते थे, बदामी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ के मैं निकला तो 2-3 आदमी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे कान भरने शुरू कर दिए, यूं है यूं है यूं है। मेरी अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, ये तजर्बा मेरा, यूं है क्यों है, अल्हम्दुलिल्लाह पर नाना बनकर बैठा हूँ, आज तक लड़ाई नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, न कभी रूट करो घर बैठी है जाके, न कभी मेरे दीनी काम में एक जर्रे का करोड़वा हिस्सा उसने रुकावट खड़ी की है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कान भरने वाली बात। अच्छा, इसी तरह कुछ और भी जब मैंने रिश्ते किए ना, उसमें भी मेरे साथ ये हुआ है कि आने वाले ने आना है, ये इत्तला नहीं थी, एक इस बार जो दूसरी बार इत्तला नहीं थी, लेकिन आने वाला आया और दबंग आदमी आया उसी बिरादरी का, यूं तो यूं तो यूं। तो मैं चूंकि पहले का तजुर्बा करता और मैं उसमें अपने मैं समझ गया था कि ये अल्लाह इनको तौफीक दे, हिदायत दे। तो उसने भी आकर ऐसी बातें की कि बस हाजत नहीं थी, गुनाहों भरी गुफ्तगू थी जिसकी वाकई हाजत नहीं थी। अब चलो मैंने मतलब एक बात है, वो किसी की बेटी से या बेटे से रिश्ता किया भी है और उसका बाप या दादा या चाचा कोई करप्शन है भी उसका, इससे जरूरी है कि इसको असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, बाज करप्शन ऐसे होते हैं या गुनाह ऐसे होते हैं, 100% गुनाह है, लेकिन उनका असर जो है वो इतना लिया नहीं जाता। जैसे कि अगर आपने कहीं शादी की बात डाली और पता चला कि बेटी का बाप जो है ना जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ता, अब बच के रहना, संभल के रहना, पक्का बेनमाजी, आप क्या असर लोगे यार इसका, शादी इसके बाप से थोड़ी करनी है अपने को यार,
बेटी तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ती है और पढ़ेगी, कुरान नहीं सीखी हुई मैं सिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो यूं मैं आपको समझा रहा हूं, ये मुआशरा बड़ा मतलब, यानी जो भी आप इस मुआशरे का पहलू उठाएंगे ना तो यूं लगता है जैसे आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, कोई किसी की अच्छाई देख ही नहीं सकता। चढ़ाते हैं, कान भरते हैं, खामा खाना का अपनी आखिरत दाव पे लगाते हैं, और इनके बातों में जो आ गया उनके खानदान को भी तबाह कर देते हैं। देखने में अच्छे लगेंगे आपको, बात दाढ़ी वाले मिलेंगे, इसमें मजहबी बातें करेंगे, अल्लाह रसूल की बातें करेंगे, आपके हमदर्द होंगे कि मैं हमको ये आखिरत के फायदा, दुनिया का फायदा, अब फंस जाओगे, मर जाओगे, ये हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाओगे, ऐसी बातें आके करेंगे, होगा पीछे कुछ भी नहीं। तो अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे, सच बोलना चाहिए और चुप मरना चाहिए, ऐसे मौके पर कि हमारे दो अल्फाज की वजह से कहीं सानों दो खानदान, दो दिल मिलते मिलते दूर हो जाए और हम आखिरत में फंस जाए। बल्कि कोई सी सूरत हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर बताया ना, हर बात बताने की। जैसे मैंने कहा बेनमाजी, सुसर बेनमाजी है, बड़ा भाई बेनमाजी है, या बड़ा भाई तो अब नहीं बता, क्या जरूरत है यार, नमाज कौन पढ़ता, तुम कौन सी पढ़ते हो नमाज, यार कितनी पढ़ते हो नमाज? नमाज पढ़ना फर्ज है, ना पढ़ने वाला गुनाहगार जहन्नम का हकदार है। लेकिन ये वो बातें हैं कि जिससे कोई घर खराब नहीं हो रहे। हाँ, जुआड़ी है जिससे आप जिससे रिश्ता कर रहे हैं, आपको 100% पता है कि जुआड़ी है, और आप हैं हिम्मत वाले और आप इनको बचाने का 100% ज़हन है आपका, भले बताएं आपकी जुआड़ी है, सोच समझ के करना, और आप इसके पास बिल्कुल प्रूफ हो तो और नीयतों को बचाना, तो अर्ज नहीं है कि जुआड़ी खानदान खराब करेगा, बेनमाजी खानदान खराब नहीं कर रहा, ये हमारा मुशाहदा है। अच्छा, नमाजी है, उसको नमाज आती कितनी यार, कौन लाखों में कोई नमाजी मिलेगा, हजारों में मिलेगा जिसको सही दुरुस्त 100% नमाज आती हो। हालात ऐसे तो बाज गुनाह जो है ना, अगरचे गुनाह होते हैं लेकिन मुआशरती तौर पर उनका इतने असरात मुआशरे पर नहीं पड़ रहे, वरना तो मुश्किल ये हो गई है कि शायद 99% मुसलमान बेनमाजी होंगे इस वक्त, मेरा गुमान है। मस्जिदें वीरान पड़ी है, खाली पड़ी है, तो यार रिश्ते करोगे या क्या करोगे यार, कहाँ जाओगे? रिश्ते नहीं करोगे तो बेटी वो भी बेनमाजी, तो बेटा वो भी बेनमाजी, रिश्ते करोगे या नहीं करोगे? अब रिश्ता मिल नहीं रहा, ये बुढ़ी हो जाएगी, ये बुढ़ा हो जाएगा, तो दे भी देते हैं, सब कोई पूछता भी नहीं है, नमाज पढ़ते हैं, भले सूद खाता तब भी दे देंगे। सूदी कारोबार करता या सूदी इदारे में सर्विस करता हो तो आजकल जेंटलमैन माना जाता है, अफसर है, चाहे सूद खाता हो बिच्छू और सांप जमा करके रखे हैं तुम्हारे लिए, पाल के आ जाओ, मिलजुल के डसवाएंगे अपने आप को, लोग जा ही रहे ना। तो इसलिए मतलब मौका महल देखकर सोच समझकर बात की जाए, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। 12 गुनाह से हर सूरत में बचकर काम करना है। हम जैसा है तो दाढ़ी भी देखेगा, इमामा भी देखेगा, जुल्फे भी चेक करेगा। अब ऐसे मुआशरे में है कितने यार, लाएंगे कहाँ से? मदनी है कि नियम ये भी देखेंगे, दरस नियम किया हुआ है, कहाँ किया हुआ है, अच्छा वहां से मदनी होना चाहिए यार, अपने माहौल का निकला हुआ हो तो दिल ज्यादा टुकेगा। एक मैं अपनी जो भी अपनी सोचे बता रहा हूं, तो लाए कहां से यार ऐसा मदनी? अच्छा फिर मदनी भी है तो वाकई मदनी वो मदीने वाली सुन्नतों वाला मदनी है या दरस निजामी करके कुछ और कुछ कर रहा है, जरूर मदनी हो गया। इसका मत ये थोड़ी का वो जन्नत की छाप भी लग गई इस पर कि मदनी इस जन्नती, बेटी को लेकर जन्नत में जाकर मौज करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो कमाता भी है नहीं, कितना कमाता है ये देखते हैं लोग, दिखना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन फाका मस्ती हुई तो भी मुश्किल हो जाएगी कि वो फक्र कुफ्र तक ले जाता है ना। तो है मतलब सब देखना होता है, मगर आखिरत भी देखे, दुनिया भी देखे, सीरत भी देखे, सूरत भी देखे। अब वो सूरत खराब होगी और अगर जहनी तौर पर फरीक सानी जो है उसको समझ नहीं आई या वो उसका हुस्न अच्छा हुआ तो भी घर चलेगा नहीं। तो इक्वल मामला होगा ना, बैलेंस तो चलेगा, डिसबैलेंस एक भी हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। ये सब देखना और लोग देखते ही, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, सीरत नहीं देखते, सूरत तो देखते हैं।